Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to share with you guys the review of the new Fenty Beauty Pro Filter Concealer and their Pro Filter Setting Powder. So recently they have launched their concealer and their setting powder. और concealer setting powder के साथ I've also ordered their foundation as well. क्योंकि मैं try करना चाहती थी इनकी foundation भी with the concealer and the setting powder. So I've ordered this foundation as well from Sephora website. मैं सारे products की details नीचे mention कर दूंगी description box में. So this is how the packaging looks like of this concealer and the setting powder. So in the packaging, so this is how the concealer looks like and this is how the powder looks like. So मुझे powder की packaging बहुत ही पसंद आई. It's very unique packaging as you can see. और यहाँ पे Fenty Beauty लिखा है and this is how the concealer looks like and I'm sure you guys must have seen the foundation. तो ये foundation है. तो मैंने foundation इसलिए order की थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि concealer के साथ और powder के साथ foundation कैसे लगेगी and I really wanted to try out their foundation for so long, so that's why I've ordered their foundation and recently they've launched 10 more new shades on this foundation as well. So this is मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में फाउंडेशन के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि this review is not about the foundation, but still I've ordered this foundation and my shade is 300 in this foundation. तो मैं as I said मैं सारी डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक करें. Now let's talk about the concealer first. So this is how the concealer looks like और मेरा शेड है 220. तो मैंने 220 शेड ऑर्डर किया था एंड देयर टोटल ऑफ 50 शेड्स इन द कंसीलर एज वेल. तो आपको बहुत ही इजीली अपना शेड मिल जाएगा कंसीलर का. और फाउंडेशन के साथ एक सिमिलर शेड भी है, जैसे 300 फाउंडेशन है तो 300 कंसीलर शेड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा. मैं थोड़ा सा लाइट कंसीलर चाहती थी, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर 220. तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है आप ये वाला शेड ऑर्डर कर सकते हैं. So this is how the concealer looks like. So let me just read out few things about the concealer. So it's a creamy, long wear, crease proof liquid concealer that delivers light as air. Medium to full coverage concealer in a groundbreaking range of 50 easy to shop soft matte shades. So there are 50 shades as I said और ये बहुत ही soft matte कंसीलर है एंड मीडियम टू फुल कवरेज है, तो आप बिल्डअप कर सकते हैं कवरेज. एंड प्राइस वाइज इट्स अराउंड $26 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. एंड देयर इज 8 ml ऑफ प्रोडक्ट इन हेयर. So this is all about the concealer. Now let's talk about the setting powder. So this is how the setting powder looks like and as I said मुझे packaging setting powder की बहुत ही पसंद आई. And my shade is banana, तो मैंने banana order किया था and there is total of 28 grams of product in here. So when you open this, it looks like this. और इसकी बहुत ही एक strong scent है, but I really like the scent of it. Now let me just read out few things about the setting powder as well. So it's a superfine weightless loose setting powder and it has 8 sheer shades to perfect and extend makeup wear for that filtered and photo ready finish. So there are total of 8 shades. तो मैंने banana order किया, तो अगर आपकी मेरी जैसी skin tone है आप banana order कर सकते हैं. So this is all about the packaging. Now I'm going to show you guys the application of this concealer and setting powder and whether I like them or not. So if you're interested, then please keep on watching. So I've already moisturized my face. It's been 15 minutes. तो अब मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी और मैं Fenty Beauty की फाउंडेशन ट्राई करूंगी आज. एंड आई हैव हर्ड दैट दिस फाउंडेशन इज अ बिट ड्राइंग, तो इसलिए मैं ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज करूंगी. दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिस कॉस्मेटिक्स. इट्स सिलिकॉन फ्री और ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, तो मैं ये वाला यूज करूंगी. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है बट स्टिल मैं नहीं चाहती कि फाउंडेशन थोड़ी सी भी ड्राई लगे मेरी स्किन पे, तो इसलिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ. अब चाहें तो आप मैटिफाइंग प्राइमर भी यूज कर सकते हैं इफ योर स्किन इज ऑयली. तो मैं ये अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ऑन माय स्किन. तो मैं कंसीलर के साथ ये वाली फाउंडेशन भी ट्राई करना चाहती थी क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं की थी ये फाउंडेशन. सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑर्डर्ड दिस एज वेल. तो मैं अच्छे से इस तरह से डैप कर लूंगी. इससे जो प्राइमर होगा वो मेरे पोर्स को अच्छे से फिल कर देगा.
मैं डिटेल रिव्यू नहीं कर रही इस फाउंडेशन का क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत पुरानी है. सो मैं ट्राई करना चाहती थी विद द सेम कंसीलर, सेम ब्रांड, तो इसलिए मैंने ऑर्डर की थी. सो माई शेड इज 300. सो आई होप दिस शेड इज गोना मैच मी. So the good thing is that it comes with a pump, which is very good. So I'm going to take this foundation on the back of my hand. ये बहुत ही liquidy foundation as you can see. So can you guys see? So मैं थोड़े से dots apply कर लूँगी ताकि मैं easily foundation को distribute कर लूँ on my face. And don't forget the neck as well. Now with the help of sponge मैं इसको blend कर लूँगी. I think shade थोड़ा सा dark है. I could have ordered like a bit lighter shade as well. Let's see. So as you can see shade थोड़ा सा dark लग रहा है मुझे. So I'm going to use a brush on this side just to see. No, I think sponge is better. और शेड काफ़ी येलो है, बट मुझे येलो अंडरटोन वाली फाउंडेशन अच्छी लगती हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा येलो लग रहा है. और थोड़ी सी फाउंडेशन ड्राई होती जा रही है, सो यू हैव टू लाइक ब्लेंड इट रियली फास्ट. बट मैंने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया था अपना फेस. मैंने फेशियल ऑयल भी अप्लाई किया था ताकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे. फाउंडेशन शेड बहुत डार्क है. आई कुड हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड दैट 235, बट मैंने सेफोरा की वेबसाइट पे अपना शेड मैच किया था विद मेबेलिन 225, बट आई डोंट नो ये डार्क शेड क्यों आ गया. सो लेट्स सी. फाउंडेशन शेड बहुत डार्क है. इट्स लुकिंग रियली रियली डार्क. कैन यू गाइस सी? एंड आई हैव हर्ड ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होती है, तो आई डोंट नो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी. तो मैं 2 लेयर्स नहीं अप्लाई करूंगी सिंस द फाउंडेशन इज वेरी डार्क ऑन माई स्किन. तो आई एम जस्ट गोना स्टिक टू 1 लेयर अभी तक. कवरेज वाइज आई वुड से इट्स मीडियम टू फुल कवरेज एज यू कैन सी. और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है फाउंडेशन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट्स मैट फाउंडेशन. सो नाउ द ओनली थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट द फाउंडेशन इज द शेड. तो मुझे शेड बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है ऑन कैमरा. बहुत बहुत डार्क लग रहा है ये. सो लेट्स सी. लेट्स मूव ऑन टू द कंसीलर. नाउ आई एम गोना यूज दिस फेंटी कंसीलर और मेरा शेड है 220. तो थैंक गॉड मैंने 300 शेड नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि फाउंडेशन के साथ आप सेम शेड ऑर्डर कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लाइट कंसीलर चाहिए था एंड थैंकफुली मैंने थोड़ा लाइट कंसीलर ही ऑर्डर किया है. सो दिस इज 220. So this is how the concealer looks like. So this is how the applicator is. तो मैं बहुत ही कम अप्लाई करूँगी क्योंकि वेबसाइट पे लिखा था कि just use very little bit. तो अगर मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए होगी so I'm gonna apply a second layer as well. मुझे सीरियसली फाउंडेशन का शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा. So let's see. Concealer, I think I've ordered pretty nice color. तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, आप फाउंडेशन का लाइटर शेड भी ऑर्डर कर सकते हैं. So now I'm just gonna use damp sponge again. लव द कंसीलर शेड. और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है.
एंड यू डोंट हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ कंसीलर, आप थोड़ा ही कंसीलर अप्लाई करें. And I think it's medium to full coverage, so you can definitely build up the coverage as well. तो मैं second layer apply करूँगी क्योंकि I can still see little bit of darkness here. But so far बहुत अच्छे से blend हो रहा है concealer. And as you can see, मैंने light कलर का concealer use किया है तो foundation का shade अब better लग रहा है. But still I'm not happy with the color. So I can still see थोड़ी सी यहाँ पे darkness मुझे नज़र आ रही है, तो मैं थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना चाहती. I don't want this concealer to be cakey. तो मैं बहुत हल्का सा यहाँ अप्लाई कर रही हूँ. That's it. And again I'm going to blend it. I think it's better. So as you can see, आप coverage build up कर सकते हैं. So now it's actually looking better. So this is how the concealer looks like. As I said, मुझे concealer का ये वाला shade बहुत ही पसंद आया. And when I look closely into the mirror, so concealer हल्का हल्का सा crease हो रहा है underneath my eyes, as you can see here. क्योंकि usually जो थोड़े से thick concealers होते हैं वो मेरे under eyes पे थोड़े से crease हो जाते हैं. Except for the Fit Me concealer, I love that concealer. वो बहुत ही light weight है. बट ये हल्का सा यहाँ पे क्रीज में सेटल हो रहा है, तो मैं फटाफट से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी विद दी सेटिंग पाउडर. तो मैंने फेंटी ब्यूटी का सेटिंग पाउडर ऑर्डर किया. दिस इज इन द शेड बनाना. सो दिस इज द शेड एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कम्स विद द लिड एज वेल. तो आप इसके ऊपर लिड भी रख सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोना ओपन दिस. तो पहले मैं डैम स्पंज के साथ हल्का सा कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी. और सेट करने के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ रियल टेक्निक्स का. मैं स्पंज से नहीं सेट करूँगी क्योंकि मैं बेक नहीं करना चाहती अभी. आई जस्ट वॉन्ट टू सेट माई अंडर आइज. तो मैं बहुत हल्का सा इस तरह से डैप कर लूँगी. दिस पाउडर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट. So can you guys see the difference? अब स्पंज की हेल्प से मैं एक्स्ट्रा अप्लाई कर रही हूँ. So same I'm gonna set on the other side as well. इस बनाना पाउडर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइटर साइड पे ही है. तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, यू कैन एक्चुअली ऑर्डर दिस. तो बेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा कलर है ये. So I'm gonna set rest of my face with the same powder. और मैं बहुत हल्के से I'm just gonna dab it on my face. I really like the texture of this powder. बहुत अच्छे से सेट कर दिया इसने मेरा फेस एज वेल एज माई अंडर आइज. मुझे बिल्कुल भी पोर्स नहीं नज़र आ रहे ऑन माई टी जोन. तो बहुत ही स्मूथली इसे सेट कर दिया है. बट स्टिल
I can see a little bit of creasing underneath my eyes with the concealer. क्योंकि कंसीलर थोड़ा सा हैवी है एज आई सेड, तो आप प्लीज एक लेयर ही अप्लाई करें पहले. So this is how the concealer and powder look like now. Again, I can see a little bit of creasing. Other than that, I would say coverage wise concealer बहुत अच्छे से कवर कर दिया मेरे अंडर आइज को, और पाउडर ने बहुत अच्छे से सेट कर दिया मेरे अंडर आइज. एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द सेटिंग पाउडर स्पेशली, बट विद द कंसीलर आई डोंट नो, आई थिंक मैंने कलर करेक्टिंग नहीं की थी, तो आई कैन स्टिल सी बहुत ही लाइट सी यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस है, बट यू कांट सी ऑन कैमरा. बट अदरवाइज आई वुड से माई फेस इज लुकिंग रियली रियली स्मूथ. और फाउंडेशन के साथ आफ्टर सेटिंग द फाउंडेशन इज ऑल्सो लुकिंग रियली गुड. कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई डोंट नो वेदर इट्स गोना ऑक्सीडाइज और नॉट, बट टिल नाउ आई वुड से I love the powder more than the concealer. So I'm gonna do rest of my makeup and I'll be right back. So guys, overall I would say I'm happy with this concealer and I really love this setting powder. इसने बहुत अच्छे से मेरे अंडर आइज को सेट कर दिया है, और आई कैन नॉट सी अ सिंगल पोर ऑन माई फेस. बहुत ही अच्छे से मेरे पोर्स को भी स्मूथ कर दिया. तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली रहती है, आप ये वाला लूज पाउडर ट्राई कर सकते हैं फॉर योर पोर्स एज वेल. तो आपको फेस पे ऑयल भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने अच्छे से आपके पोर्स को स्मूथ कर देगा ये. सो आई रियली लव this loose powder. As far as this concealer goes, I would say it's looking good. It's not like really bad concealer, but I can actually pass this concealer क्योंकि ये थोड़ा सा thick concealer है and it's medium to full coverage. तो अगर आप build-up करने की कोशिश करेंगे coverage को, ये थोड़ा सा cakey हो सकता है underneath your eyes. तो मुझे थोड़े से लाइट कंसीलर्स अच्छे लगते हैं, जैसे फिटमी का कंसीलर काफ़ी लाइट है, सो आप बिल्ड कर सकते हैं उसको. बट ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे अंडर आइज पे थोड़ा सा केकी लग रहा है, क्योंकि मैंने 2 लेयर्स अप्लाई की थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई किया स्टिल. और शायद मैंने कलर करेक्टिंग नहीं की, इसलिए थोड़ा सा मुझे अभी भी यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस लग रही है. सो आई शुड हैव एक्चुअली डन दी कलर करेक्टिंग एज वेल विद दिस कंसीलर. बट ओवरऑल इट्स अ गुड कंसीलर. All in all, and on camera, as you can see, it's looking really really good. और shade wise, I'm really really happy with the shade. मैंने 220 ऑर्डर किया था, और ये बहुत ही येलो अंडरटोन कंसीलर है, which I love. मुझे पिंक अंडरटोन कंसीलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है. तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है, तो आप ये वाला कंसीलर ट्राई कर सकते हैं फॉर योर अंडर आइज. काफ़ी लाइट है कलर में भी, तो आपके अंडर आइज को हाईलाइट भी कर देगा. नाउ एज फार एज दी फाउंडेशन गोज, मुझे फाउंडेशन का कलर नहीं पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा डार्क है, बट कंसीलर के साथ, क्योंकि कंसीलर थोड़ा सा लाइट है, तो उसके साथ अब फाउंडेशन का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एज यू कैन सी. बट मैंने सिर्फ एक ही लेयर अप्लाई की थी क्योंकि कलर नहीं था ठीक मेरी स्किन पे, तो आई कैन स्टिल सी लिटिल बिट ऑफ स्पॉट्स ऑन माई फेस. तो मैं दोबारा से ट्राई करूंगी ये वाली फाउंडेशन, बट एज आई सेड कलर थोड़ा सा डार्क है. बट ओवरऑल आई वुड से फाउंडेशन भी अच्छी है, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लग रही स्किन पे, और मैटिफाइंग फाउंडेशन है ये. बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप ट्राई करना चाहते हैं ये वाली फाउंडेशन, तो आप इसमें थोड़ा सा फेशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, देन यू कैन यूज दिस फाउंडेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है ऑन योर स्किन. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है. और ओवरऑल आई वुड से आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस परचेज. सो आई रियली होप आप लोगों को ये रिव्यू फेंटी ब्यूटी का कंसीलर का और लूज पाउडर का पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एज ऑलवेज प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड डू शेयर माई वीडियोज एज वेल. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.